BJP congratulates Indian players for winning record number of medals and bringing glory to the nation during Commonwealth Games 2010. Now the games which were projected in 2003 as rupees 1,899 crores, it went up to rupees 70,000 crores in 2010. This is one of the important things which is related with this subject, and this is all increasing. This budget is approved by the cabinet, approved by the PMO, and what type of justification which they needed to verify for increasing this amount. This is the right of the Indian people to understand what is exact the reason behind it. Out of rupees 70,000 crores, only rupees 350 crores actually spent for Indian sports persons. The Commonwealth Games, related with the games, talking about the players, and out of 70,000 crores, only rupees 350 crores actually spent for Indian sport persons. Corruption money was passed on a Benami companies, relatives of minister, organizer through Swiss bank account, tax havens, and Mauritius route. I am giving detail about it, and everywhere the written copy is with you. You will get the information about it because it will take too much time. That's why I'm making some only main points in front of you. 4 nephews of organizing committee, vice chairman were hired. However, their relatives are involved. I am giving you the details in my note. The Delhi Development Authority, DDA, we started the village project as late as October 2007. 2003 and up to 2007, the 4 years they take to start this project and have been consistently missing deadlines. The DDA had been set the target of April 2010 to hand over the games village. The detail is there in the slides. I am also giving you the hard copy to it. As far as the Supreme Court is concerned, it is already the judgment which is delivered by the Supreme Court. Even the Supreme Court had remarked that the Commonwealth Games project has found unbridled corruption and is meant for public purpose only till October 14. The closing day of the games, after which everything will be used for private purpose. This is not comments from the leader of opposition or anybody. This is from the Supreme Court on record. But now the time has come to ask some serious questions over rampant bungling surrounding the games. Now the interesting thing, it is the construction of the stadium and renovation of the stadium. I just verified from the track record. In India, all type of good stadiums which are available, their maximum cost is 100 crores. Even the Firoz Shah Kotla, I just confirmed it from Arunji, he has spent something 80 to 84 crores by air conditioning other activities is concerned. The Commonwealth Games cost shoots up 17.5 times from original estimate, that is cost of rupees 70,000 crores. Cost of renovation of Nehru Stadium went up to rupees 961 crores. This is really one of the interesting things where you can judge it. In Nagpur, we have got really a good cricket stadium, a very modern stadium. The cost is 84 crores. Dharamshala Stadium, which is constructed by the initiative of Anurag Thakur, is our MP and Yuva Morcha President. The cost is only 48 crores. The Indore Stadium cost is only 40 crores. Even the Mumbai, they are planning to develop the Brabourne Stadium. All stadiums renovated cost is less than 100 crores, having the capacity of 65 to 75,000 people.
But this Nehru Stadium, which is renovated, the capacity of 65 to 75,000, the cost is 961 crores. You just understand, it is really a great corruption in construction of the stadiums. I am giving you the detail of the companies: AM Film scam company, multi-crore medical equipment scam, tender for overlays, time scoring and diesel tender, cleaning and waste management, synthetic HOA codes from Yonex, Japanese company. The cost given is 156 crore and market cost is 26 lakh rupees. The CVC reports, CAG observations, it is also given in that note. Correct? It's okay. Corruption in the Queen's Baton Relay. 3 senior Delhi Commonwealth Games officials have been suspended over financial irregularities, and the case has been handed to the government's financial and anti-corruption watchdog. It is going on. You know the history of the case. Cost keeps rising and rising, CAG. According to a 2009 report by the Comptroller and Auditor General of India, CAG, the budget for the Commonwealth Games 2010 underwent several revisions. These all revisions are approved by the Cabinet Subcommittee. I don't know whether how they justify this. And this is also approved by the Prime Minister Office. And after that, the money is released. Whatever the advance released to Suresh Kalmadi, that is also signed by the Prime Minister. Everything for getting more advance, more money, every file, it is approved by the PMO and giving permission to that. So how it is the only that they are talking about only about the officers? It's the question arises, why they are not verified the justification of the price rise? What type of tender process they have? And constantly the CVC has reported to the PMO that here is the things are not going properly. You should investigate the matter, and every time report was sent to the Prime Minister Office. And the minister, the group of ministers, the Cabinet Subcommittee, they are also the part of the main authority who approved everything. The first budget for the games approved by the Cabinet in April 2007 estimates the total expenditure of the game at rupees 3,566 crore plus rupees 300 crore. It approximately comes to 3,866 crore. That's the first budget approved by the Cabinet. How it is increased? Who is responsible for that? Yes, I will give it. You wait for it. I will give it. Anything detail, all documents I will give you. Let him complete. आप थोड़ा पेशेंस रखिए ना. आप हर बार बहुत जल्दी में रहती है, मुझे पता नहीं क्या करना. अभी सब प्रेस में आया, पर इसकी केस बनाने के लिए डिटेल दे रहे हैं. The Congress government is responsible for CWG corruption. Kalmadi, as the head of the OC, Delhi's Chief Minister Dikshit and Union Urban Development Minister Jaypal Reddy controlled huge chunks of money earmarked in the name of games. For more than 15 lakhs rupees of any bill, they have to take an approval from the Urban Ministry. That was the rule and regulation was there, and by which every bill is approved by the Urban Ministry. I am giving the details about it. I am asking some important question to the Prime Minister. First of all, again I repeat it, all type of estimate, increase in estimates, approved by Cabinet Subcommittee, approved by the Prime Minister, and before approving all these things, why they are not verified the things?
At the same time, they have received the letter from CVC that the things are not going on properly. In this stage, why this type of inquiry was not conducted by the authority, that is the important question. It is approved by on the highest level, and we have got all type of evidences related with it. Is the whole cabinet not responsible for CWG chaos and corruption? Congress is ruling at the center and in Delhi and controlling the CWG, then who is monitoring the committee? Who was the monitoring the committee? Are the Minister of Urban Development, Sports, Home, Finance, Tourism, Civil Aviation and IB not involved and responsible? Did the Delhi government not spend more than rupees 20,000 crores in the name of CWG, where thousands of crores earmarked for scheduled caste and downtrodden and diverted to CWG? That is, this diversion was taken place by the approval of the cabinet. This diversion is taken place by the approval of the PMO. Why this type of money belongs to scheduled caste is diverted to this project? It is really objectionable. Can you deny that thanks to CAG and CTO, CVC, that your government was compelled to inquire into the scam, where your senior colleagues and government not directly monitoring and supervising the CWG work? It is not true, Mr. Prime Minister, that several Benami transactions have taken place in CWG, use of Mauritius route, tax havens are used to avoid the actual identity and transparency. कल टाइम्स नाउ पर एक चल रहा था, एक कंपनी थी जिन्होंने 250 करोड़ का काम मिला था, IT notice to London firm attaching property was issued one day and withdrawn next day. उसका लेटर कल दिखाया था टीवी पर. किसके कहने पर विड्रॉ किया? एक 250 करोड़ का जिसको काम मिला था उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का पत्र आज देते हो और दूसरे दिन विड्रॉ होते हो, तो एक दिन में क्या चमत्कार हुआ? हु इज रिस्पॉन्सिबल? सरकार ने उसका जवाब देना चाहिए. और ये कल तो आप लेटर आपने आंखों के सामने आपने और हमने सबने देखा है. All these were going on for couple of years. ये तो अभी गेम शुरू होने के पहले महीने भर की बात है. जब चर्चा हुई तब प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये सीरियसली इनको लगाओ, ये अधिकारियों को भेजो, कमेटी करो. ये तो सालों से चल रहा है. कोई भी प्रोजेक्ट कहने के पहले उसके प्री क्वालिफिकेशन नॉर्म्स तैयार होते हैं कि टेंडर कौन भर सकता है. अगर 100 करोड़ का टेंडर है तो उसकी वेल्थ कितनी होनी चाहिए. उसका अगर कंस्ट्रक्शन है तो उसने उसके जीवन में कितना कंस्ट्रक्शन, कितने स्क्वायर फीट का किया है, कितना स्ट्रक्चरल का काम किया है, कितना स्टेडियम किया है. उसको प्री क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल क्राइटेरिया एंड फॉर इकोनॉमिक क्राइटेरिया. ये क्राइटेरिया किसने फिक्स किए? ये क्राइटेरिया किसने बदले? ये क्राइटेरिया में लूज करके किसको काम दिया गया और ये क्यों हुआ? और इसके ऊपर अथॉरिटी जब कैबिनेट की सब कमेटी थी उन्होंने क्यों नहीं किया? और इसको अप्रूवल देते समय ये सब चेक करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी क्या? ये सब जिम्मेदारी आपने अधिकारियों के ऊपर छोड़ दी थी. देखिए, जांच जो शुरू हुई है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर है और जो जांच करने वाले हैं वो मिनिस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट की जांच मुझे नहीं लगता उनके हाथ से होगी. जहां तक ये जो चल रहा है ये आईवाश चल रहा है. करप्शन भी उन्होंने ही करना, करप्शन के विरोध में उन्होंने ही बोलना, कार्रवाई करने का नाटक उन्होंने ही करना और कार्रवाई करके पीठ थिपाने का काम उन्होंने ही करना, बजट भी उन्होंने ही सैंक्शन करना. ये सब बीच में जो है ड्रामाबाजी है. देखिए, जो इसमें इन्वॉल्व है, जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है सरकार करे. वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. हाँ भाई, जिसको लेना है सरकार कार्रवाई करे ना. देखिए, अभी तो फिलहाल ऐसा है कि मुझे लगता है कि सरकार ने इसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो करे और अभी तो इसकी कोई जानकारी बाहर नहीं आई है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. लेट इट कम्स देन उसके बाद बोल सकेंगे. देखिए, पहली बात ऐसी है, एक मिनट इनका दे दे. पहली बात ऐसी है कि जो भी इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई करें. विजय गोयल ये पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में अपना आवाज उठाकर ये बात कही तो उनको कमेटी के बाहर किया गया. अब इस कमेटी में राहुल गांधी थे, ज्योतिराज सिंधिया थे, देश के बड़े बड़े नेता थे, उनके नामों की लिस्ट है मेरे पास.
विजय गोयल जी को निकाला गया कमेटी से। विजय कुमार मल्होत्रा जी का जो बातचीत हुई, उनकी कोई बात चली नहीं, उनको कोई सुना नहीं। बार बार उन्होंने डिसेंडेंट नोट दिया, अनेक बार पत्र लिख कर दिया है। वहां सब वन मैन आर्मी जैसा काम चल रहा था। और जहां तक सैंक्शंस थे, दिल्ली गवर्नमेंट के काम थे, केंद्र सरकार के काम थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के काम थे, उन कोई कामों से विजय कुमार मल्होत्रा का कोई अर्थार्थी संबंध नहीं था। अगर एमसीडी के रोल में भी इंक्वायरी होती है और कुछ गलत बातें होती तो उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई करिए। जरूरत नहीं है, दैट इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, दे कैन स्टार्ट इंक्वायरी इन एमसीडी आल्सो, वी हैव नो प्रॉब्लम। If the some people are involved in MCD, it is the right of the government, central government है, उसके परिग में सब आ सकता है और वो करे इसकी इंक्वायरी। उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है बहन जी, एमसीडी कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऊपर प्राइम मिनिस्टर है। मेयर ने पहले कहा हम कोऑपरेट करेंगे, और मेयर ने कहा है कोई भी इंक्वायरी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मैं पहले आपको कह चुका हूं कि इसमें कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी का हो या पार्टी का बाहर हो, जो इसमें करप्शन में आता होगा उसके ऊपर केंद्र सरकार के जो कमेटी बनी है उन्होंने उसके प्रूफ्स इकट्ठा करके अगर वो गिल्टी है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये पार्टी का साफ मत है। अरे पार्टी क्या करेगी? पार्टी इज नॉट ए गवर्नमेंट, इट इज द राइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, पहली बात ऐसी है कि इंक्वायरी में ओवरलैपिंग होता है। जस्ट मिनट, आप लिसन, आप पहली बात मेरी सुनिए। पहला ही प्रॉब्लम यह है कि सीबीआई को सब सीज करने का अधिकार है, सीबीसी को नहीं है। फिर बाकी अनेक इंक्वायरी में ध्यान में आता है कि एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को कोऑपरेट नहीं करती है, और इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर यह इजीली होने की दृष्टि से मैंने ये मांग की है कि कैबिनेट सचिव जो है उनके इस पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी रहे और उसके अंडर सब आता है, और उसमें जो एमसीडी की भी बात आपने की होगी, राज्य सरकार की बात की होगी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की होगी, अर्बन डिपार्टमेंट की बात की होगी, यह सब पे कार्रवाई करने का अधिकार है। इसको सिंक्रोनाइज करके एक एजेंसी को देकर कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और इस प्रकार के किसी भी इंक्वायरी का हम स्वागत करेंगे। और इसमें जो भी गिल्टी होंगे, वो कोई भी हो, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी का मत है, हमको किसी को प्रोटेक्ट करना नहीं है और किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है। पहले आने तो दीजिए कुछ, अभी तक कुछ आया ही नहीं तो क्या बताऊं मैं। हमारा एक भी आदमी का कोई संबंध नहीं आया, कोई बात नहीं, और आप मैं अभी कैसे जवाब दे पाऊंगा? हाँ, यस मोदी, मैं फिर से आपको, मैंने पिछले 2 कमेटी का अध्ययन किया है। एक बात मेरे ध्यान में आई कि जहां अनेक एजेंसीज काम करती है तो उसमें ओवरलैपिंग होता है, फिर उसमें सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें सीबीआई को कुछ ज्यादा अधिकार है, सीबीसी को कम है, फिर कागज एक में को नहीं मिलते हैं, इंक्वायरी स्मूथ में होती नहीं है। एक जस्ट ए मिनट मैडम, आप मेरी तो सुनिए पहले। फिर उसके बाद ओवरलैपिंग होकर पेपर मिलते नहीं है, इसलिए हाईएस्ट अथॉरिटी करके इस सब इंक्वायरी को कोऑर्डिनेट करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उनके अध्यक्षता में सबको काम करने के लिए बोलिए, क्या कि वो कोऑर्डिनेट करें और फाइनल अथॉरिटी उनकी चलकर वो सब बता सकेंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर अच्छी तरह से आगे जाएगा। रही बात मिनिस्टर्स की, तो ये इंक्वायरी नहीं कर सकते, इसलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, ये इसमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज जो मिला है उसकी इंक्वायरी और इस कमेटी का भी रेफरेंस लेके उसमें कर सकेगी। पहली बात, हमारे नेताओं ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, कोई साइन नहीं किया, कोई अप्रूवल नहीं किया, उनसे कोई लेना नहीं। मैंने विजय कुमार मल्होत्रा से बात की है। इस कमेटी में अनेक मेंबर थे। अगर आपका सवाल पूछना है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन इज राहुल गांधी, जो भी इस कमेटी के मेंबर थे। अब मैं जाकर ये पूछूं क्या कि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधे और बेचारे प्रियंका मुंशी, तो अभी उनके स्वास्थ्य मुझको ये नहीं बोलना नहीं चाहता, पर ये सब लोग उसके मेंबर थे। देखिए, सवाल यह है कि मैं इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहता। मेरा कहना इसमें ऐसा है कि इसमें जो भी निर्णय गलत हुए हैं, किसने किए, फाइल पर मिलेंगे।
जिसने साइन की है, जिसने इसके ऊपर मंजूर किया है, उसको आइडेंटिफाई करो, और जिसने किया है जो जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करो। ही में बिलोंग्स टू XYZ, कोई भी रहे वो। Gadkari ji, you only blamed the entire cabinet for taking the decisions. Your man V.K. Malhotra was in the committee. Then he is also responsible. आप कैसे समझो, मैं विजय कुमार मल्होत्रा का और कैबिनेट मिनिस्टर का 70,000 का बजट किसके हाथ? विजय कुमार मल्होत्रा के हाथ में 1 रुपए का बजट नहीं था जी, वो मेरे को दिया हुआ पास था ना, वो भी मुझे पास उन्होंने जनरल इसमें मिला था, तो बेचारे कन्वर्ट नहीं कर पाए दूसरे से। अब आप विजय कुमार मल्होत्रा, उनका कोई संबंध नहीं है। ओलंपिक एसोसिएशन के कारण वो मेंबर थे। वो ओलंपिक एसोसिएशन के कारण वो मेंबर थे। देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो अलग अलग प्रकार के टेंडर्स दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के प्री क्वालिफिकेशन नॉर्म्स पक्के किए गए थे, टेक्निकल और इकोनॉमिक नॉर्म्स। उसके बाद किसको फेवर किया गया है, कॉस्ट एस्केलेशन कैसा है, एस्टिमेट कॉस्ट एग्जैक्टली बराबर थी कि नहीं थी, इसके बारे में वेरिफिकेशन होकर जो बातें बाहर आएगी, उसमें ये ऑफिसर्स के कारण दिए गए कि पॉलिटिकल लीडरशिप के दबाव के कारण दिए गए, इसका जब तथ्य बाहर आएगा तो पार्लियामेंट कमेटी जो है उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इसमें यह कमेटी एक सुप्रीम अथॉरिटी है, इसमें जो जो इन्वॉल्व है, जिनकी जो जिम्मेदारी फिक्सअप होगी उनके ऊपर सजा होगी। देखिए, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, मैंने इतना ही कहा है कि इन बातों को हर बार सैंक्शन और क्लियरेंसेस प्लीओमो के अप्रूवल से हुए हैं। इसका मीनिंग यह है कि एस्टिमेट कॉस्ट अगर एग्जैगरेटेड हुई है तो उन्होंने जांची होगी। इसका कहना, मेरे का कहना ऐसा है कि अगर ज्यादा का पैसा मांगा होगा तो उसका जितना उन्होंने देखा होगा, लेट अस वेरीफाई इट। यू कैनॉट इन्हें हर ये जिम्मेदारी पूरे 70,000 करोड़ की एक सुरेश कलमाड़ी के ऊपर है। सुरेश कलमाड़ी ने जो गेम खेला है उसकी अमाउंट कितनी है वो सिद्ध हो जाएगी। बाकी जो गेम जिन्होंने खेला है वो किसका है वो बाहर आएगा। एक तो ब्रेकअप 80,000 करोड़ का है जो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है, वो ऑफिशियल दिया हुआ है, मैं आपको इसमें लिखा हुआ है, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने 80,000 करोड़ का ब्रेकअप दिया है। देखिए, मैं फिर से मेरा मुद्दा क्लियर कर देता हूं, आप समझ लीजिए। ये जो बजट 1899 करोड़ का था, ये बढ़ते हुए जिस प्रकार से आगे गया है, इसको कंट्रोलिंग करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी थी। रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर्स, जब जब ये एस्टिमेट बढ़े हैं, इसको अप्रूव करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर उन्होंने भी उसको अप्रूव करने के बाद ही पैसा रिलीज हुआ है। सुरेश कलमाड़ी को मिला हुआ पहला एडवांस, ये भी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव करने के बाद ही मिला हुआ है। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ने वो जस्टिफाई किया होगा, वो सही किया है कि नहीं किया है, इसकी इंक्वायरी करो, सही किया है तो छोड़ दो, गलत होगा तो उसको कार्रवाई करो उनके ऊपर। Who is Sudhanshu? What Sudhanshu? What matter? I don't know anything about it. Any company, any particular bureaucrat or politician from the ruling party whose name has figured, who's a beneficiary, any company's name that you can point out? मैंने अपने डिटेल्स में कितने 25 रिश्तेदार किसके किसके कहाँ काम कर रहे थे इसके डिटेल्स दिए हुए हैं। दूसरी बात ऐसी है कि इसके बारे में आज हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन को बायस करना नहीं चाहते। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जिसके एविडेंसेस हमारे पास मौजूद है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने डेलीगेशन के द्वारा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने देंगे। और इसलिए मैंने आज एक बात कही है कि कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड सब डॉक्यूमेंट को तुरंत सीज करो, क्योंकि आज इसको ओपन करेंगे तो इसको चेंज हो जाएंगे। जिनके दिए जिम्मेदारी उनको तुरंत बंद करो उसे, अदरवाइज देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि डॉक्यूमेंट भी चेंज हो सकते हैं। तो हमारे पास जो जानकारी, और मैं आपके मार्फत मैंने आह्वान किया है लोगों को कि उनके पास भी जो तथ्य होंगे, हमने इतने इकट्ठा किए, हमारे पास काफी डॉक्यूमेंट है, और हमारी टीम पिछले 15-20 दिन से रात दिन इसके लिए बैठी हुई है। हम लोग अलग अलग ऑफिस जाकर उससे जानकारी निकाल कर लाए हैं, पर सब तथ्य आज हम सामने रखेंगे नहीं। जब हमको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और हमको होगा कि उसके सामने जाना है तो उसको पूरा वहां हम सौंपेंगे। पीछे वाले को पूछने दो। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि स्वच्छ प्रशासन के दृष्टि से, दूध का दूध और पानी का पानी होने के दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सुझाव को मान्य करेंगे और ये इंक्वायरी हम दोनों भी पार्लियामेंट में हमारे नेता और हमारे एमपी इस बात को डिमांड करेंगे और इससे सच बाहर आएगा और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी इसको स्वीकृत करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।